Okay, students. Now, question number 9 from the differentiation past papers. It's from May, June 16. The equation is given of a curve. Show that the dy over dx is this. It is from the topic of implicit functions. क्या होते हैं implicit function? जिसमें y या x सब्जेक्ट ना बना हुआ हो और हमें डिफरेंशिएट करना हो, right? So, without making any subject, we have to differentiate this. इसमें बेटा y की पावर क्या है? Here 1, यहां पर क्या है? 3. x की पावर क्या है? x की पावर यहां क्या है? डिफरेंट पावर्स हैं दोनों वेरिएबल्स की, तो सब्जेक्ट नहीं बना सकते हम। ठीक हो गया? अगर सेम पावर होती है तो सब्जेक्ट बनते हैं। x की सेम पावर हो जाती सब्जेक्ट बन जाता, y की सेम पावर हो जाती सब्जेक्ट बन जाता। डिफरेंट पावर्स वाले एलिमेंट सब्जेक्ट नहीं बन सकते, राइट? तो हम विदाउट मेकिंग सब्जेक्ट डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं जरूर। क्लियर? नाउ हाउ टू डिफरेंशिएट दिस? x क्यूब, द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर। Any confusion? No. Minus 3. Here it is. We have to use u into v formula. X square y. X square is u and y is v. So x square, the derivative of u, the derivative of v. The derivative of v, the derivative of y is y dash plus v. The derivative of u is 2x plus, what is this? Y cube. It will be 3y square y dash. इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको बताया था जब भी y को डिफरेंशिएट करेंगे साथ में y dash या dy over dx आ जाएगा। Now after that we have to make y dash be the subject to get the result. So now it is 3x square minus 3x square y dash minus 6xy plus 3y square y dash equals to 0. Now y dash common, it will be minus 3x square plus 3y square equals to, this will be 6xy minus 3x square. Any confusion up to this? Hopefully no. Now y dash equals to 6xy minus 3x square divided by minus 3x square plus 3y square. अब आइए हमें प्रूव ये करना है, हमें प्रूव ये करना है जनाब। सो इट विल बी y डैश, जब हमने यहां से कॉमन लिया था तो इट इज 3x स्क्वायर, हियर इट इज 3x स्क्वायर। नाउ ऊपर से अगर मैं -3 कॉमन ले लूं, सो इट विल बी x स्क्वायर माइनस 2y, -2 हमने कॉमन क्या लिया? -3 -2xy डिवाइडेड बाय, यहां से अगर कॉमन ले लिया जाए -3, सो इट विल बी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, -3 cancel out, and this we have to prove, and this we have to prove. What we have in the second part, find the coordinates of the point on the curve where the tangent is parallel to x-axis. When the tangent is parallel to x-axis, then y dash equal to 0. Then y dash equals to 0 means the derivative of the curve is equals to 0. So if the derivative of the curve is equals to 0, तो denominator तो cross multiply होके 0 हो जाएगा, सिर्फ numerator रह जाएगा. It will be x squared minus 2xy equals to 0. What we have to calculate? Find the coordinates, right, of the point. x और y दोनों की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. x कॉमन, so it will be x minus 2y equal to 0. The value of x is 0 and the value of x is 2y. The value of x is 0, not possible. अगर value of x 0 हो गई, value of x 0 हो गई तो हमारे पास ये कंप्लीट कर्व नहीं रहेगा, right? Now the x equals to 2y, इसको अगर हम क्वेश्चन में रखते हैं x equals to 2y को, so it will be when x is 2y, x क्यूब की जगह रखा जाएगा तो 2y होल क्यूब माइनस 3 2y स्क्वायर y प्लस y क्यूब
equals to 3. We have to calculate the value of y from this. So it will be 8y cube minus 4 3s are 12. Y square into y is y cube plus y cube equals to 3. Now, 8 plus 1, 9. 9 minus 12 is minus 3y cube equals to 3. And y cube equals to minus 1. And what is the value of y? The value of y is minus 1. The value of y is minus 1. Therefore, the value of x is minus 2. Therefore, the value of x is minus 2. So, the coordinates are minus 2 and minus 1. अगर हम x0 को भी लेकर चलते हैं, बिकॉज क्योंकि कर्व x0 का अगर लेकर चलते हैं तो फर्स्ट टर्म है 0, सेकेंड टर्म है 0 प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3, क्योंकि कर्व x0 के साथ भी स्टिल अभी y क्यूब इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, राइट? सो कैन आई से दैट y इक्वल टू 0? अगर हम x को 0 और y को 0 करें तो ये और ये बेसिकली दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स x. अगर हम इसको देखते हैं y क्यूब इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 इट इज नॉट अ कर्व, इट इज अ स्ट्रेट लाइन. तो इसको हम कर देंगे रिजेक्ट और फर्स्ट और सेकंड वैल्यू -2 और -1 को हम कर लेंगे एक्सेप्ट. दीज आर द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज इक्वल टू 0. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 is from May June 16 paper 3-2. The curve with the equation this has two stationary points. Find the exact value of the coordinates of these stationary points. How to calculate the stationary points? First, differentiate the curve. Equate with 0. You will get the value of x. X को रखेंगे question में. You will get the value of y. Right? So, the first target is to differentiate the curve. And how to differentiate the curve? By the formula u upon v quotient rule. So, the value of u is ln x whole square. So, u dash will be 2 ln x and the derivative of the base is 1 over x. So, it means 2 over x ln x. V equals to x. So, v dash is equals to 1. Derivative of x is 1. Clear? Any confusion? Zanoon, clear? ln x whole square, first the derivative of the power. 2 नीचे आया, ln x whole power 1. Derivative of the base, ln x का derivative क्या है? 1 over x. तो वो साथ में मैंने लिख दिया है. Now, after that, y dash equals to u, y dash equals to u upon v का formula, v, the derivative of u, 2 over x ln x minus u ln x whole square. The derivative of v 1 लिखने की नीड नहीं, divided by v square x square equal to 0 as we have to calculate the stationary coordinates. Equal to 0 किया तो डिनोमिनेटर हो गया 0, डिनोमिनेटर हो गया 0, x और x कैंसिल आउट, 2 ln x minus ln x whole square equal to 0, ln x common, it will be 2 minus ln x equal to 0. First ln x equals to 0 and second ln x equals to 2. Taking it is e power 0 and the value of x is 1 because what is ln? ln is basically log base e. हम log फॉर्म से किस में आ गए? इंडेक्स फॉर्म में आ गए. log की बेस राइट साइड वाले एलिमेंट की बेस बन जाती है तो log एलिमिनेट हो जाता है, राइट? एंड हियर इट इज x equals to e power 2. We have to find the exact values. X is 1, so the y value is ln 1 is 0. So everything is 0. Here it is 1 comma 0. And now the value of y ln e squared whole squared divided by e squared. ln e को cancel करता है, so 2 squared is 4 divided by e squared. So the coordinates are e squared 4 upon e squared. These are the exact coordinates. A question of 6 marks. Next question, question number 11 is of May June 16, paper 3-3. The question of parametric equation. So in the parametric equation question, we have to prove that dy over dx is this.
So first, we have to differentiate the first equation, dx over dt equals to the derivative of t is 1 plus the derivative of cos is minus sin t. हो गया जनाब? Here it is dy over dt. ln के साथ जो भी एलिमेंट है अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस साइन टी और इसका डेरिवेटिव ऊपर, तो ऊपर क्या आ गया? cos t. Now we have to calculate dy over dx by using chain rule. dy वाला एलिमेंट ऊपर cos t डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन टी और डिवीजन के साथ dx over dt, तो मींस क्या हो गया? 1 अपॉन 1 माइनस साइन टी. कोई प्रॉब्लम? क्लियर? अब आइए, cos t इज हियर. डिवीजन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख दिया. बात समझ में आ रही? नाउ आफ्टर दैट क्या इसको लिखा जा सकता है? cos t डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज cos स्क्वायर टी. Cancel out 1 upon cos t is sec t. This which we have to prove. What? This one? dy over dx, according to the chain rule, it will be dy over dt multiplied by dt over dx. तो dy over dt को सीधा लिख दे, सॉरी, और dx over dt को रेसिप्रोकेट करके लिख दे. Everywhere, right? Now, in the second part, hence find the x coordinate of the point on the curve at which the gradient is equals to 3, means dy over dx sec t is equals to 3. Sec t is the gradient which is equals to 3. sec को क्या लिखा जा सकता है? 1 upon cos. तो क्या मैं लिख सकता हूं? cos t किसके इक्वल हो गया? 1 upon 3. cos पॉजिटिव है, कहां होगा? फर्स्ट में और लास्ट में. व्हाट इज द बेसिक एंगल? व्हाट इज द बेसिक एंगल इन रेडियंस? cos इनवर्स ऑफ 1 upon 3. cos इनवर्स ऑफ 1 upon 3. हाँ, 1.23. 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आया 1.23. So here is 1.23, here is 1.23. Therefore, the value of t is, the first is 1.23 and the second one is, हमें कहां तक जाना है? पॉजिटिव 90 एंड नेगेटिव 90. तो नेगेटिव एंगल क्या बन गया? माइनस 1.23. एक एंगल इधर बना और एक एंगल इधर बना. नाउ फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स. फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट. तो बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट अगर निकालना है, 1.23 अगर यहां रखेंगे हम, so it will be 1.23 plus cos t 1 upon 3. What is the answer? खुद ही हो रहा है ऑटो. What is the result? 1.56. And the second one is minus 1.23 plus 1 upon 3. Minus 897. 897. This is the result. Are you clear? The two coordinates, the two values of x. Now, question number 12. This is October number 15, paper 3-1. The equation of the curve is this. Obtain an expression of dy over dx. And show that it can be written in the form of this. In the form of tan x or e. इस फॉर्म में ये आनी चाहिए एक्सप्रेशन. चेक करते हैं कि किस तरीके से होगा. अब देखिएगा यहां पर u इंटू वी. फॉर्मूला कौन सा लगेगा? यहां पर u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई होगा. सुना करते हैं जनाब. फर्स्ट पार्ट, u इज e पावर माइनस 2x. u डैश इज पावर e की पावर माइनस 2x is e की पावर माइनस 2x with the derivative of the power. Derivative of the power is minus 2 e की power minus 2x. Any confusion? Clear? Second, v is tan x. And what is the derivative of tan x?
sec square x. Now y dash equals to u, the derivative of v, plus v, the derivative of u. कोई प्रॉब्लम आ रही है बात समझ में? दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? e की पावर -2x आ रहा है कॉमन। सेक स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, सही। -2 यहां बचा, मल्टीप्लाई हो तो -2 tan x। नाउ e की पावर -2x, e की पावर -2x, here it is tan square x -2 tan x plus 1. Now e power -2x, this will be tan x -2 whole square. tan x -2 whole square क्या बनेगा? tan x -1 whole square, not -2। tan x -1 whole square, इसको एक्सपेंड कर रहा है, ऊपर का फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला में इसको बंद कर दिया, ठीक हो गया। -1 कॉमन ले लीजिए यहां से, क्योंकि हमें किस फॉर्म में लिखना है? पहले कांस्टेंट हो और बाद में tan की टर्म हो। तो जब -1 कॉमन लेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan x, और जो -1 कॉमन लिया वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जनाब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? द वैल्यू ऑफ ए इज 1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? द वैल्यू ऑफ बी इज ऑल्सो 1। ए और बी की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। आर यू क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट, explain why the gradient of the curve is never negative। ग्रेडियंट ऑफ द कर्व कभी नेगेटिव में क्यों नहीं होगा? बिकॉज dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब आप देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं इसको, 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय e की पावर 2x, e की पावर मैं लिख रहा हूं सिर्फ x, मैं 2x नहीं लिख रहा, मैं क्या लिख रहा हूं? सिर्फ x, और होल पर स्क्वायर लगा रहा हूं। कोई प्रॉब्लम? क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है। एज इट इज इन स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। आगे चलिए, थर्ड वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द ग्रेडियंट इज लीस्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द ग्रेडियंट इज लीस्ट। हाउ टू कैलकुलेट दिस? ग्रेडियंट की लीस्ट वैल्यू क्या होगी? 0। क्यों होगी जनाब? क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता। 0 तो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। सो 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय e की पावर x इक्वल टू 0। ओहो, होल स्क्वायर लगाना तो मैं भूल ही गया, क्या फायदा लगाने का? राइट साइड पे 0 ही तो है, टेकिंग अंडर रूट से खत्म हो जाएगा। सही है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। e की पावर x तो 0 हो गया, तो tan x इक्वल टू 1 एंड द वैल्यू ऑफ x इज π/4। जन उनके कैलकुलेटर ने ऑटो बिल्कुल बता दिया हमें कि tan इनवर्स ऑफ 1 होता है π/4। Now students, question number 14 is from October November 15, paper 3-3. Find the equation of the tangent to the curve at the point for which x is this. इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आपने कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट के लिए किन चीजों की नीड होती है? फर्स्ट ग्रेडियंट, सेकंड कोऑर्डिनेट। फर्स्ट ग्रेडियंट, सेकंड कोऑर्डिनेट। तो ग्रेडियंट कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? x π/4 है, तो y की वैल्यू आप निकाल लें। अगर क्वेश्चन में π/4 रखता हूं तो tan π/4 होता है 1, तो ऊपर क्या हो गया? 2 - 1, नीचे क्या हो गया? 1 + 1, तो आंसर क्या आ गया? 1/2। तो कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया π/4, 1/2। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट के लिए हमें क्या करना होगा? डिफरेंशिएट। सो डिफरेंशिएशन के लिए u इज 2 - tan x, so u dash is
minus sec square x. V is 1 plus tan x and v dash is sec square x. Now, ऐसा ही है. Now, y dash will be v 1 plus tan x, the derivative of u minus sec square x, minus u 2 minus tan x, the derivative of v sec square x, divided by v square 1 plus tan x का होल स्क्वायर. आ रही है बात समझ में? सो इट विल बी, वर्किंग आगे करते हैं, माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स सेक स्क्वायर. ऐसा ही है? यस. व्हाट? minus 2 here, it will be minus sec square x. ओके, तो यहां पर मैं थोड़ा सा सेकंड टर्म इसकी अरेंज करने के लिए दोबारा से फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा रहा हूं. here it is minus sec square x and then minus sec square x tan x. ऐसा ही है? माइनस सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स कैंसिल आउट, 1 प्लस टेन एक्स होल स्क्वायर. न्यूमरेटर में क्या बचा? माइनस थ्री सेक स्क्वायर एक्स, ऐसा ही है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन एक्स होल स्क्वायर. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट विच for which x is pi by 4. अब सुनिएगा, y dash minus 3, क्या मैं sec square x को tan square x plus 1 लिख सकता हूं? डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर. अब x की वैल्यू अगर मैं यहां पर रखता हूं pi by 4, तो y dash क्या आ जाएगा? ग्रेडियंट ऑफ द कर्व minus 3 into 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर. So it will be minus 3 over 2. Gradient of the curve क्या आ गया? minus 3 over 2. Now by equation y minus y1 equals to m x minus x1 y minus y1. y1 क्या है? 1/2. Gradient क्या है? minus 3 over 2. x minus x1 क्या है? pi by 4. 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए. 2y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3 को अंदर माइनस 3x प्लस 3 पाई बाय 4. सो 2y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 3 पाई बाय 4 प्लस 1. एलसीएम ले लीजिए. सो इट विल बी 4 to the 8y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 4 3 the 12 माइनस 4 3 the 12x प्लस 3y 3 pi plus 4. This is the equation of tangent. This is the equation of tangent. अच्छा, हमें लिखना है y equal to mx plus c की फॉर्म में. हमें लिखना है y equal to mx plus c की फॉर्म में. तो y को बनाना पड़ेगा हमें सब्जेक्ट. तो y क्या हो जाएगा? माइनस 12x ओवर 8 प्लस 3 पाई प्लस 4. c को मैंने अलग से लिख दिया डिवाइडेड बाय 8. जरा मुझे इसका आंसर बताएं, 3 पाई प्लस 4 डिवाइडेड बाय 8 का. Where c is correct to 3 significant figure. 3 SF में लिखना है हमें. हाँ, 1.68. This is the final answer. y equal to mx plus c के फॉर्म में हमने लिखा. क्लियर है बात? Now the question number 15 is from May June 15 paper 3-1. The equation of the curve is here. Find the x coordinate of the stationary point. फिर वही सिलसिला, x coordinate of the stationary point differentiate करके 0 से equate कर दिया जाएगा. So now dy over dx is 3 cos 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन 2x
एंगल का डेरिवेटिव 2 -7 cos x और +0 साइन का -cos. Now here it is -6 sin 2x -7 cos x. हमें स्टेशनरी कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, तो इक्वल टू क्या हो गया 0. अब आइए -6 sin 2x को क्या मैं लिख सकता हूं 2 sin x cos x. 2 sin x cos x -7 cos x इक्वल टू 0. ये कितना हो गया -12 sin x cos x -7 cos x इक्वल टू 0. कॉमन ले लीजिए, माइनस cos x कॉमन ले लीजिए. सो इट विल बी 12 sin x प्लस 7 इक्वल टू 0. एक बार क्या हो गया cos x इक्वल टू 0. Yes, the derivative of sin is cos. Here it is plus, here it is plus, here it is plus, here it is plus. So here it is minus, right? Now, so cos x equals to 0 and sin x equals to 7/12. ऐसा ही we have to calculate all angles, find the x coordinate of the stationary point. हमें 0 से लेकर पाई के दरमियान रहना है. पाई मीन्स 180 डिग्रीज. cos 0 हमेशा बताया है, cos 0 हो, -1 हो, 1 हो, कैलकुलेटर यूज नहीं होगा. कैलकुलेटर यूज नहीं होगा. cos 0 कहाँ कहाँ होता है? cos 0 होता है बच्चों 90 and 270 मीन्स π/2, π/2 एंड 3π/2. वहां तक तो जाना नहीं, हमें तो सिर्फ पाई पे रुक जाना है. तो एक एक्स की वैल्यू क्या आ गई π/2. यहां से आ जाएगी साइन पॉजिटिव फर्स्ट and second. What is the basic angle? Sine inverse of 7/12. Calculator in radians. 0.62623. Therefore, the general angles are, the first is 0.623 and the second one is pi minus 0.623. Pi minus 0.623. क्या 2.52. 2.52. These are the three results.